Why don't you go ahead? Hello, everyone, and welcome to Pyramid Technoplast Limited earnings call for Q2 FY25. We have with us on the call today Mr. Bijay Kumar Agarwal, Managing Director, and Mr. Jaiprakash Agarwal, Whole-time Director and Chief Financial Officer. I must remind you that the discussion on today's call may include certain forward-looking statements and must be therefore viewed in conjunction with the risks that the company faces. I would now like to hand over the call to the management, post which we'll open the floor for questions. Thank you, and over to you, sir. Hello, friends. A very good afternoon, everybody, and thanks for joining us. I know the result is not what is expected, but in spite of our volume increase, the top line remains flat. We'll come down to it later on. First, let me run down on what we have achieved, what we have done, and what we are planning to do. So let me share the progress made in Q2. As we continue to focus on growth, innovation, and operational excellence, our efforts are aligned with our long-term vision, and I will walk you through the key developments and financial performance. So now, overall, the SDP drum segment contributed around 47% of the total revenue, followed by IBC segment at 33%, and MS drum saw an increase in its contribution, reaching 12%. While other operating income accounted for 7% of the total revenue. Our H1 revenue stood at rupees 267 crores with an 8.5% margin, and our balance sheet remains healthy. Despite a dynamic market environment, we have successfully navigated and are on track to meet our growth targets. Let me run you through all the initiatives segment-wise what we are doing. So MS drum. This segment has truly outperformed with an impressive 44% growth in volume year on year, leading to a 45% increase in revenue for Q2 FY25. This strong performance underscores the effectiveness of our capacity expansion strategy, which has grown from 30,000 to 50,000. We remain committed to scaling our operations further with plans to boost MS drum capacity to 90,000 units per month by Q3. तीन चीजें मेन जो बनाते हैं कैटेगरी होते हैं, तो मेटल ड्रम जो होता है, मेटल ड्रम भी करो तो कर सो भी कर दो. We can't hear you. Let me just run down through it and then we'll have a discussion over. Is that fine? So additionally, we are preparing to establish another unit, that is Unit 8 in Wada, where we'll start MS drum production. For SDP drums, while we are operating at near full capacity, full optimum capacity, and achieve the growth of 4% year on year volume during Q2 FY25. And good news is that we have completed the construction of extension of Unit 7, wherein we will add polymer drum, and that should start from next month onwards. So polymer production at Unit 7 is set to commence from next month, as I said. The additional capacity will be added at Unit 8 in Wada. And IBC segment saw a growth of 7% in terms of volume, but it was somewhat impacted by pricing pressure due to fluctuating raw material cost and some competition. The IBC production at Unit 7 is operating at more than 50%, and as we said earlier, we will gonna add new capacity. Now, as we look ahead, we remain focused on key part of this strategy. Unit 7 and Unit 8, which result in a 30% growth. Sir, can't hear you. Yeah, can you hear me now? Yeah, that's better. So now, so the key part of this strategy is our ongoing expansion by at Unit 6, Unit 7, and Unit 8, which will result in 30% increase in our total capacity
by the end of FY26. To give a clear picture of our expansion plan, we will achieve the following expansions at Unit 6 and Unit 7 in Bharuch and 8 in Maharashtra, as the SDP drums will increase by 25% to around 32,530 metric tons per annum. IBC capacity will increase by 29% to 5,40,000 units, and MS drum capacity will increase by 55% to 16,720 metric tons. We are focused on operational efficiencies and are taking specific steps towards margin expansion also. We have revised the CapEx budget by for the current financial year to 90 crores, which will include a rupees 50 crore for captive solar plant. We have already incurred rupees 34 crores in H1 FY25. For FY26, we have allocated rupees 20 to 30 crore for expansion at Unit 6, 7, and 8. We are shortly commencing construction of our first recycling plant also, which is located in Bharuch, which is expected to be completed by May 2025, which will again give us an edge over others, and plus it will help in improving our margins. This will entail an investment of around 8 to 10 crores and will allow us to recycle 10,000 tons of plastic annually, reducing our dependence on virgin material. This project is expected to have a payback period of around 2.5 to 3 years. Raw material costs currently constitute around 80% of our overall expenses, and this will largely reduce our dependency, thereby making margins more sustainable and providing additional revenue through sale of excess material. And for cost optimization through renewable energy, we are also happy to share that we are investing in green energy, which is progressing well. Our 15.25 megawatt solar plant set to be live by around Feb or March in 2025 is expected to reduce our annual power cost by approximately 8 to 10 crores. Not only this, our margins will improve, but it also underscore our commitment towards sustainability. So as we drive these expansions and innovations, our focus remains on building a future that is both profitable and sustainable. To grow, to invest in backward and invest in forward expansion. With our strategies and progress, we are confident in our ability to scale operations, integrate sustainability, and expand capacity. We are on track to meet our goals and deliver lasting value to our stakeholders. Now I'll welcome you all with your all good questions. Let us answer all your questions now. Thanks to hear me. Thank you. Thank you, sir. Participants who wish to ask a question, please raise your hand using the reaction button, and we'll take the questions one by one. We have the first question from Mr. Dipesh Sancheti. Please go ahead, sir. Yeah, sir. Can you hear me? Can you hear me, Jay? Yeah. Yes, sir. All good, sir. Acha. You were going to mention about what happened this quarter. That is what we all are, I think, waiting for. So we want to hear it from you first. Then I can ask you other questions. So majorly, see, volume-wise, we have grown, but the pricing remains flat because we saw a little some fall in the selling prices also, and at the same time we wanted to capture the market share. This is the criteria to capture the market share furthermore. So we have been acquiring customers. New customers has been acquired on board. So there was a few prices corrections we have seen. So this was basically because of the pricing pressure. प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया सर, उसमें वन टाइम कॉस्ट है वो जो प्रोडक्शन एड हुआ है, उसके बाद उसके कारण भी है जो अगले क्वार्टर में मेरे को लगता है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है
उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। This is not Sale बढ़ी pricing है। price pressure, I would say this is acquiring cost. So once the customer is on board, so you can realize मैंने that अपनी सेल को भी सर्वाइव किया है और प्लस नए कस्टमर भी ऐड किए हैं आईबीसी वगैरह। सर सेल भी अप्रोक्सीमेटली फ्लैट ही रहा है, मतलब देयर हैजंट बीन वेरी प्राइस बढ़ा है, आप प्राइस वाइज देख रहे हैं, वॉल्यूम वाइज बढ़ा है। वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो 2% से हमारा एचडीपी ड्रम की सेल बढ़ी है। एचडीपी ओके ड्रम की कैपेसिटी पूरी है जो यूज कर रहे थे, एक दो मशीन ऐड किए हैं, उसकी सेल मिल गई मेरे को। एक आईबीसी में मेरे पास सरप्लस कैपेसिटी थी, उसमें 5.5% का सेल ग्रोथ हुआ है हमारा आईबीसी में इस क्वार्टर में, ओके और एमएसडम में 13.5% का सेल ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर। 13.5% का सॉरी गुड। एंड सर तीनों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हुआ है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का? ड्रम तो 100% यूज होती है सर। मेटल ड्रम की भी कैपेसिटी ऐड हो रही है, इसलिए उसका यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आईबीसी की जो थोड़ी सी कैपेसिटी अभी सरप्लस है मेरी, तो इस साल में कंप्लीट हो जाएगी, तब तक हम दूसरी मशीन का ऑर्डर दिए हैं, वो लग जाएगी वहाँ गुजरात में। प्लस महाराष्ट्र का जो प्लांट है वहां पर नई मशीन आ रही है, वहाँ अलग कैपेसिटी आएगी। ओके So as I said, कि हमारा we have the new polymer drum the capacity has now we have installed the capacity. हाँ, मशीन आके लगने लग गई है, वो जो जगह बन गई है उसमें Next वो month capacity- onwards, we are starting with the expansion of polymer drum business, where we are setting up one big machine, 2 machines right now, and coming month we have spare capacity available. So we'll keep on adding polymer drum business there. Okay. So when should we expect this? Because on slide, I think slide 2 में आपने mention किया है कि when is your capacity and how much by how much it is increasing? Slide 7, sorry, page number 7 में. So HDB drums and all this, if by FY26 ये सारी तीनों चीजों capacity वैसे बढ़ जाएगी 55%, 29% and 25%. Yes, first phase will be completed. So construction wise, we are on track. So we'll keep on adding machines. So first phase investment will be done and it will start reflecting in FY26. Okay. So even the commercial by capacity increase, even the commencement will also happen, right? Exactly, correct. Okay. And demand है sir? डिमांड है सर, डिमांड Sorry है, sir, अग्रवाल demand सर है। आप बोल रहे थे कुछ? नहीं मैंने कैपेसिटी मशीन वगैरह सब ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे जैसे बिल्डिंग बन रही है वैसे वैसे मशीन लग रही है, और जैसे जैसे मशीन लग रही है उसकी कैपेसिटी भी यूज होती जा रही है। Right. अरे Sir, 5 मार्च के बाद सब मशीन लगने लग जाएगी और कैपेसिटी 2-3 महीने में सब यूज भी होने लगी है। सेकेंड क्वार्टर सर जो मैं आएगा उसमें आप देखेंगे कि वो सेल वगैरह सब वहां पर लग गया और उसका सेल का रिफ्लेक्शन आएगा। ओके सर मैं पूछना चाहता था कि जो कैपेसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ उतना ऑलरेडी ऑर्डर्स है, मतलब व्हाट इज आवर ऑर्डर बुक राइट नाउ? ऑर्डर बुक तो सर We have जो a हम very- बना रहे हैं वो पूरा बिक रहा है। जो एमएस ड्रम बनाया अभी कैपेसिटी ऐड की है, मेरा 13-14% से क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ हो रहा है। तो कैपेसिटी तो मार्केट है, मार्केट में घुस रहे हैं, मिल भी रहा है, मार्केट कुछ नए कस्टमर ऐड हो रहे हैं, उससे मिलती है कैपेसिटी। So we have a healthy order book. So once we onboard the customer remains with us for a long time. So it doesn't go. So it is an initial cost to acquire a customer. But then once the customer is on board, it is a recurring business month on month. This is how we progress. So all this capacity will be used for existing customers only, right? नहीं सर, नए कस्टमर लेते हैं ना, जो नए मेरे पुराने कस्टमर उनको तो मैं पूरा दे ही रहा हूँ। ये जो Okay. कैपेसिटी है पुराने कस्टमर की जो सेल बढ़ती है वो होती है, प्लस नए कस्टमर आते हैं उससे होती है। And this quarter we see a Right. lot of coming up with from chemical industry. महाराष्ट्र में यदि हम आएंगे तो वहां पर सब नए कस्टमर ही ऑन बोर्ड करेंगे ना। मैं महाराष्ट्र के लोकेशन Right. का जो एडवांटेज मिलेगा उसमें नए कस्टमर ही ऐड होंगे। In fact, we have started onboarding Maharashtra customer now onwards, so that once our Wada unit start, we will just transfer the customer from supply the customer from Wada unit, not from Gujarat unit. अच्छा, गुजरात में भी क्या है सर, गुजरात में रोज नई केमिकल फैक्ट्री आ रही है, वहाँ नई कैपेसिटी रोड ऐड हो रही है। जो मेरे पुराने कस्टमर दूसरे लोकेशन में वो भी वहाँ देश साइड में आके लगा रहे हैं, तो वो सब कस्टमर भी उनको वहाँ मिलते ऐड होते हैं। So existing कोई फैक्ट्रीज नहीं है जो जिसमें हम डायरेक्टली एक्वायर करके करते, मतलब the cost of putting a factory and instead of that cost of acquiring a factory, मतलब बेटर किस में है? तो
डिले हो गया उस चीज सोचने में, क्योंकि हमको जो लोकेशन चाहिए थी और वैसे जगह पर जितनी बड़ा प्लांट चाहिए वो सब ऐसा कोई मिला नहीं। और अभी हम अभी फैक्ट्री डाल दिए, कंस्ट्रक्शन कर लिए, तो अभी पुराने फैक्ट्री में दिमाग लगाकर डबल कॉस्ट कहाँ करेंगे, जो अभी लगा लिए उसी को करेंगे। उसके बाद Right. ऑफर आए भी मेरे को एक दो, फिर उसमें मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं। Okay. Jay, you mentioned something about virgin plastic. I mean, you're not going to use virgin plastic या फिर कोई नई कुछ लगा रहा है. If you can just Virgin- specify more and So what is will that the happen thing- for all, both the plants? Yes, it will happen. So what is, so now new thing is coming up that you start using recycled material. So recycle, what we are planning to do is, we will procure SDP waste from the market. We will clean it, we will convert that into SDP and start producing material with that. So we'll add a new segment in the customer base also. Plus we can use that material in our existing system also. And plus we can sell the spare capacity of SDP, the chips, the material that we manufacture, we can sell it outside also. So this is just a beginning. उसमें हमारा प्लान क्या है साहब, हम लोग जो ड्रम देते हैं जिनको भी, हमारी गाड़ी जाती है उनको ड्रम, नए ड्रम देते हैं, उनके यहाँ पुराने ड्रम आते हैं, पुरानी आईबीसी आती है, उनसे वो कलेक्ट करेंगे, तो हमारी उसी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और उसको मैं अपने यहाँ लाकर रिसाइकिल करूंगा, सफाई करूंगा, दाना बनाऊंगा और उसको मैं अपने भी यूज करूंगा, और जो बाहर सेल हो सकेगा एक्स्ट्रा कैपेसिटी उसको सेल भी And करेंगे। this is just a beginning. And once we have got a control of all the system, then this market is very big. So I can watch for it. So just transport का Sorry to cost. interrupt. Can you join back in the Yeah, session? sure. queue as we have a I'll join couple in. of- I'll join in the queue. All the best, sir. I'll join in the queue. Thank you. We have the next question from Mr. Saket Kapoor. Sir, please go ahead. नमस्कार अग्रवाल जी एंड थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, सर नमस्ते। नमस्कार सर। एक जैसे आपने ये बताया कि जो न्यू क्लाइंट्स आपने ऑनबोर्ड किए हैं, जो एक्विजिशन हुआ उसके कारण एक कॉस्ट आपको बियर करना पड़ा, तो सर वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कस्टमर ऐड करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, जो नई कैपेसिटी हमने बढ़ाई है अभी ना, और जो प्रोडक्शन डेवलप किया और किया उसके कारण हुआ है, अदर एक्सपेंस बढ़े हैं, प्लस सेलिंग प्राइस में भी इफेक्ट आया है। इस बार जो कॉस्ट देख रहे हैं, कुछ लोगों को कम रेट में मैंने माल देके ऑन बोर्ड किया कस्टमर को, Yes, that इसके was- लिए वो कॉस्ट दिख रहा है। So to acquire customer, we just gave them good benefit out of it. So we have onboarded them. Now we can recover in going forward in quarter and quarter basis, we can come to the realistic price. प्रोडक्शन बड़े हैं मेरे, लेकिन आपको सेल में वॉल्यूम बड़ा है, वैल्यू में नहीं दिख रहा है। सर इसको क्वांटिफाई कर पाएंगे क्या क्या, क्योंकि आपने पिछले तिमाही में ये कहा था कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं वो बॉटम आउट हो चुके हैं और अब उसमें गिरावट की उम्मीद नहीं। बोला था उस समय यही लगा था, और अभी भी वो जो प्राइस है कुछ ना कुछ 1-2 रुपया और कम ही हुआ है, बड़ा नहीं है मार्केट प्राइस रॉ मटेरियल का। अभी भी जो जी। इस क्वार्टर में अभी भी लग रहा है हमको जैसे बॉटम आउट हो गया, लेकिन मार्केट अभी भी होल ही हो रहा है, नीचे ही जा रहा है, अभी तक बढ़ना शुरू नहीं हुआ या रुका भी नहीं है, समझिए वहीं पर रुका हुआ है। कुछ ना कुछ पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कुछ ना कुछ कम ही हुआ है प्राइस। और सर, अभी तो भी आप हमको क्या- लॉस हो गया, लेकिन सामने वाले को जो रॉ मटेरियल बेचने वाले उनको भी लॉस हो रहा है, लेकिन उनके पता नहीं क्या प्रेशर है, वो कुछ ना कुछ लूज ही हो रहा है मार्केट अभी। सर इस पर और व्याख्या करेंगे सर, किस प्रकार का प्राइस ट्रेंड है रॉ मटेरियल का और क्या की रॉ मटेरियल इनपुट्स हैं हमारे? अरे एचडीपी हम लोग पॉलीमर लेते हैं, पॉलीमर में इंडिया में नई कैपेसिटी आई है 1-2, उनके पर प्रेशर है, उस प्रेशर में वो कुछ मार्केट नीचे जाता जा रहा है। अभी भी लग रहा है, आज भी हमको जैसे लग रहा है कि अब तो बॉटम आउट हो गया, लेकिन अभी भी हम ये बोल्डली नहीं बोल पाएंगे कि आपको कि अभी इसके बाद नीचे नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग तो मैन्युफैक्चरर हैं, हमको तो रोज रॉ मटेरियल लेकर फैक्ट्री चलानी है। लेकिन ऐसे अभी सर- वो कोई रॉ मटेरियल का लॉस हो रहा है हमको, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी रॉ मटेरियल की प्राइसिंग का कोई लॉस नहीं होता है। नहीं सर, प्राइस सेंस में बता पाएंगे सर कि पिछले तिमाही में या मंथ ऑन मंथ में किस गेस कर सके सर हम लोग कि रॉ मटेरियल कैसे ट्रेंड कर रहा है, उससे एक अनुमान लगा सकते हैं? सर पिछले क्वार्टर से कुछ ना कुछ 1-1.5 रुपया 2 रुपया किलो कम हुआ है अभी मार्केट मटेरियल। अभी क्या सेलिंग प्राइस है सर हमारे प्रोडक्ट की सर, जो रॉ मटेरियल है हमारा वो कितना रुपए केजी बिकता है? अभी जो हम बेच रहे हैं कभी करीब 120 रुपए के आसपास 1 किलो बेच रहे हैं माल, और हम जो खरीद रहे हैं वो करीब 93-94 के आसपास का रेट। अच्छा मार्जिन जी सर। जो है वो हो गई है, फिर से वो प्राइस कम हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस भी है उतना मैच हो रहा है।
एक एक बात सर ये बताएं सर कि जैसे अपने पास 7-8 इकाइयां हैं, यूनिट्स हो गई हैं हमारी टोटल। जी तो सर हम अभी हमने आईटी सिस्टम्स पे क्या इन्वेस्टमेंट किया है? आप कैसे ये सब चीज सारी जगहों को अलाइन करके रखते हैं? आपके पास अपने ईआरपी सिस्टम है, एसएपी मैंने जिस ये क्या इसमें क्या सुविधाएं हैं सर? We देखिए have our own ERP system. So it basically it has combined with all the units. We get all the live updates, real-time updates. Whenever we want to see, we can see anything. It has been integrated with all the process. Like जैसे सेल होता है, दूसरा प्रोडक्ट अपने आप कम हो जाता है, and then we keep on doing the physical verification to see the effectiveness of the system. This is how we are going to, and every system is integrated with each other. दूसरा सिस्टम ये साहब, हमारे ऑफिस से उनको इंस्ट्रक्शन जाता है हर प्लांट को किसको क्या माल जाना है, उसके बाद वो डिस्पैच होता है और जो शाम हर समय हमारे पास लाइव रहता है किसका माल गया किसका नहीं। शाम में हम लोग अपनी देख सकते हैं पूरी बैलेंस शीट की किस कहाँ कितना सेल है क्या है नहीं है, वो सब पता लग जाता है। तो एक डेली छोटा बेसिस पॉइंट मैं बोलूंगा। आप बोलिए। हाँ सर, सब उसका मैं क्यों में आता हूँ सर, इसका मतलब है कि एवरी डे के बेसिस में आपके पास आपकी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सेल सबकी सारा डाटा आपके पास रहता है। मॉनिटरिंग है पूरी। अच्छा साहब, तो सर इसका हाँ क्या बोल, यस सर कुछ बोल रहे हैं आप? Saying something. बोलिए बोलिए। यस जी, मैं बता रहा हूँ सर। तो ये जब आपके पास ये सारे अनुमान सब रहते हैं और सटीक रहते हैं, तो फिर हमें एकदम एंड में आके अपने रिजल्ट्स क्यों देने पड़ते हैं? आप 13-14 जो हम ये देख रहे हैं, ट्रेंड है हमारी कि हमारे नंबर्स। ट्रांसपोर्ट वगैरह के जो बिल है ना वो बुक होने में टाइम लगते हैं, जो एक्सपेंस के बिल जो आते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह के वो बिल डिले आते हैं, उसके कारण हमको रिजेक्ट करना पड़ा रिजल्ट इस पर। और कुछ दिवाली की छुट्टी भी थी, कुछ डाटा था इसके लिए। हाँ सर। मेन इशू ट्रांसपोर्ट बिल में ही आता है, ट्रांसपोर्ट बिल जो आने में टाइम लगते हैं थोड़े इसके लिए। सर ये हर तिमाही में यही अनुमान रहेगा सर, क्योंकि हम अगर हमारे पास नंबर्स इतने लेट से आते हैं, अभी हम 2/3 1/3 ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर में आ चुके हैं, तो इससे क्या रहता है निवेशक को सर? हाँ इस बार से कुछ और पहले करने की कोशिश करेंगे कि डाटा और जल्दी कर कलेक्ट करके रिजल्ट पहले दे दें सर, कोशिश जरूर करेंगे। जी जी Going सर। सर मैं forward, लाइन में आता हूँ दोबारा। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? going forward, we have taken your note, and it is a very good note that you have given us. So we will keep on reducing this time gap, which is increased. So in coming months, you will see that results will be much faster than what is come right now. सर मैं कतार में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। आई हैव फॉलो अप, बट और भी कई लोग हैं सर। थैंक यू। Thank you. We have the next question from Mr. Pratik Dedia. Please go ahead, sir. हेलो, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है राइट? हाँ सर, हाँ बोलिए। हाँ तो सर आपने बताया कि थोड़ा आपने डिस्काउंट दिया कस्टमर को, और आपका सेलिंग प्राइस उसके लिए मतलब आपका परचेस कॉस्ट प्राइस 94 है और सेलिंग प्राइस 120 है, तो वो नेक्स्ट क्वार्टर में आप क्या 120 से ज़्यादा होगा? और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप कितने में बेच यदि रहे हैं? कुछ ऑन बोर्ड करना पड़ा है तो सर उसको कॉस्ट कम करके देना पड़ा है। जनरल सेलिंग प्राइस 120 है, लेकिन जैसे आईबीसी वगैरह का हम बेच रहे हैं 6000 में है, तो उस सामने लाने के लिए मैंने कुछ 200-400 रुपये 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो आईबीसी में ड्रम में वो चीज नहीं आई है प्रॉब्लम, वो आईबीसी के कुछ कस्टमर जो मैंने लिए हैं उसलिए आईबीसी में ही वो मार्जिन पर फोन हुआ है। तो कुछ कस्टमर मैंने कुछ कम रेट में लिए, इसलिए मान लीजिए 7500 में, 7700 में, 8800 में, ऐसा कुछ आईबीसी के कस्टमर लिए मैंने, वहां पर है। ड्रम में तो 120 रुपए का रेट मिल रहा है, तो 115 से 120 बीच में बिकता है, 25 रुपए तक में जाता है। एवरेज 120 रुपए की सेलिंग प्राइस है। ओके, और आईबीसी का सर एग्जिस्टिंग कस्टमर का कितना एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? 8000 के आसपास है। 8000, तो आपने 300-400 रुपया डिस्काउंट दिया है बराबर? हाँ सर। ओके। और आप ये जो बता रहे थे नए कस्टमर्स का एक्विजिशन के लिए डिस्काउंट दिया है, पर दूसरी जगह आप बता रहे कि आपके पास डिमांड कंटिन्यू हो रही है, जो भी कैपेसिटी आप डाल रहे हैं, तो सर वो गैप आईबीसी की कैपेसिटी पूरी नहीं हुई थी ना सर, पिछले क्वार्टर में बोला था। जो मैंने एक यूनिट 7 में आईबीसी डाला था वो 40-50% पे ही था। वो अभी मेरी 67 क्रॉस होने लग गई कैपेसिटी नए कस्टमर ऐड करने से। तो वो नए कस्टमर जो ऐड किए अभी तो हमारे को 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी 5 गाड़ी ऐसा लिया है,
उन लोगों को ज्यादा बड़ी कैपेसिटी लगती है, तो हमको लगता है आने वाले 2 समय में मेरी पूरी कैपेसिटी बुक हो जाएगी, तब उसके बाद नई मशीन चलेगी। Next year we should be installing new machine. This is what our traction, and we have already ordered, and it will come on time, and by the time demand will come, we will be ready with the new line in Gujarat. ओके, गॉट इट। एंड जो आप नए कस्टमर्स जिनको आपने ऑनबोर्ड किया है उनको क्लियरली बता दिया है कि ये वन टाइम डिस्काउंट है और आगे से बढ़ेगा के? सर सॉरी, ऐसा नहीं बताया गया उनको, ऐसा नहीं बोला गया है। वो मेरी क्वालिटी से सेटिस्फाइड होंगे तो उनको लगता है कस्टमर एक बार बोर्ड होने के बाद वो मेरे से सेटिस्फाइड होते हैं तो 200 रुपया फिर एक्स्ट्रा भी देते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस ओके, के साथ। बट सर आपको लग रहा है कि वो चैलेंज होगा कि आप फिर नेक्स्ट क्वार्टर से प्राइस बढ़ा पाओगे? जरूर बढ़ा लेंगे सर, इस महीने में मैंने बढ़ाया है तो बढ़ा ही है। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू, मैं वापस आता हूँ। क्यों? Thank you. We have the next question from Mr. Parth Kotak. Please go ahead, Parth. Hello, sir. Hi, Vijay Kumar ji. Hi, Jay. Sir, just want to understand, like, जो हमारा business model है, you've mentioned many times in the past, जो हम cost plus basis पे अपना product देते हैं, right? तो ideally अपना जो margin है वो maintain होना चाहिए। तो अपना जो 3 quarter से margin नीचे, तो मेरा मार्जिन है वो बराबर ही है। जैसे एमएस ड्रम में हम 1% कमाते थे, आज 4.5% कमा रहे हैं। उसमें सेल बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। एचडीपी ड्रम में वही 7-8% के आसपास हम करते थे, वही कर रहे हैं। मेरा मार्जिन जो ड्रॉप हुआ है वो आईबीसी में हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है कहीं, ऐसा नहीं है। सेल की ग्रोथ भी हो रही है। सेल मेरे पास एचडीपी ड्रम बेचने के लिए जो था उतना बेच रहा हूँ, जो कैपेसिटी एड हुई बिक रही है। एमएस ड्रम में कैपेसिटी एड की है, वो सेल होने लग गई। आईबीसी में थोड़ा नया कंपटीशन भी आया, कुछ हमारे लोग मेरे कस्टमर को खींचने की कोशिश कर रहे थे कुछ भी तरीके से, उसको मैंने सर्वाइव किया, कुछ पुराने कस्टमर को सर्वाइव किया, कुछ नए कस्टमर लाया, तो सेल बढ़ी है। मार्जिन का इम्पैक्ट है, धीरे धीरे वो जगह पर आ जाती है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है एक बार मार्जिन कम होती है लेकिन दोबारा मिलने लग जाए। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, मेरा खर्चा कम होगा, उसके कारण भी मेरी मार्जिन बढ़ जाएगी। एंड जो ये सर नया कॉम्पिटिटर आप मेंशन कर रहे हैं, is it, I'm sure it's some new guy who's put up a capacity, right? How serious is this competition? Because like the ROCs that we are making is absolutely amazing. तो ज्यादा टाइम तक कोई बहुत ज्यादा डिस्काउंट देके इसमें पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा कोई भी, या तो बंद हो जाएगा या तो शांत हो जाएगा, वो भी अपने मार्केट रेट में आ जाएगा। करेक्ट। वो मेरे कस्टमर को खींचने की जो कोशिश की वो तो मैं नहीं कर सकता था, रोकना था उसको। ठीक है सर, perfect. I think just wanted to take clarification. Wish you luck for the coming quarters. Thanks. Thank you, Parth. We have the next question from Mr. Bhagwat. Please go ahead, sir. Sir, you can unmute and go ahead with your question. ओके, नमस्ते सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अपना रेवेन्यू गाइडेंस था 600 को फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, तो क्या हम उस गाइडेंस को स्टिक कर रहे हैं टू अचीव नेक्स्ट 2 क्वार्टर में फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? प्राइसिंग जो भी है वो थोड़ी फॉल हुई है, तो 600 टच नहीं होगा, लेकिन 570, 575, 570 करोड़ जरूर क्रॉस करेंगे। अब देखिए सर, ऐसा यूनिट्स जो पॉलीमर ड्रम का नया एक्सपेंशन था वो मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वी आर कमिंग अप विद कमर्शियल प्रोडक्शन, सो फ्रॉम देयर वी विल स्टार्ट गेटिंग एडिशनल वॉल्यूम from polymer drums. MS drum we still have a spare capacity to onboard, capacity expansion हो रही है तो उसका भी सेल मिलेगा मुझे। So we think that there will be a next 6 months will be very good for us. उसका कारण है सर 570 जो बोल रहे हैं, इसका कि जैसे अक्टूबर में जो सेल हमारी 50 करोड़ प्लस है, तो क्रॉस धीरे धीरे हमको लग रहा है कि 570 करोड़ प्लस हो जाएंगे। ओके सर, एंड सर मेरा ये सेकंड क्वेश्चन था कि जो हम कैपेक्स अभी कर रहे हैं, तो जैसे सर ने अभी बोले कि अभी नेक्स्ट मंथ से कमीशन हो रहा है, तो लाइक वी कैन यूटिलाइज द कैपेसिटी बाय व्हेन, लाइक, और इमीडिएटली वी कैन यूटिलाइज द फुल कैपेसिटी? इमीडिएट कोई कैपेसिटी तो नहीं यूज होगी, वो 10-12-15% से हर क्वार्टर ऐड होगी कैपेसिटी और उस बंशिंग
ओके ओके सर, देन सर उस हिसाब से अपना जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी था 1,000 crore का, दैट बाय FY 27 आर वी होपफुल ऑफ अचीव ऑफ दैट? 900 से 1,000 करोड़ बोलता था सर 2027 मार्च के लिए। ओके हाँ, तो वो मेरे को अभी भी लग रहा है कि इस प्राइसिंग तो ड्रॉप हुए हैं, इसलिए 850 से 950 के बीच का कोई फिगर आना चाहिए उस समय 2027। ओके। और सर मार्जिन कैसे सेप अप हो रहा है सर, जैसे देखिए मिड टर्म में 2 से 3 साल आप तक? बताता हूँ, मार्जिन आगे से मेरा 2% 2.5% से इम्प्रूव करेगा। केवल एक रीजन से, वो है सोलर प्लांट से। ओके ओके सर। सोलर पर जो 10 करोड़ के मेरी पावर कॉस्ट में सेविंग होगी, उसके कारण भी 2% बढ़ जाएगा। पहले जैसे सेल वॉल्यूम बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, मार्जिन वो भी इम्प्रूव करेगी, तो मार्जिन बढ़ जाएगी आगे से। लेकिन सब ये रिफ्लेक्ट होगा 2026 में, 2026 फर्स्ट क्वार्टर। फाइनेंशियल ईयर में सर, फर्स्ट क्वार्टर में। सो फाइनेंशियल ईयर 25 में क्या हम अराउंड 9% मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइक 8% के आसपास एक्सपेक्ट करना चाहिए। ओके, एंड गोइंग अहेड सर लाइक 10 to 11% हम कर सकते हैं मार्जिन, राइट? ओके ओके सर, मेरे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था कि एक्चुअली हम एक चेन्नई बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है। हम एक्चुअली पिरामिड के बिजनेस थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विजिट कर सकते हैं? कर सकते हैं। Sir, we can कैसे अप्रोच करना हो? you can reach out कोई बात ऐसे देवांशी जी से, आपको मैं मैनेज कर दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे को एनी टाइम कभी भी आ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, ये मेरा क्वेश्चन। Thank you. Participants who wish to ask a question, please raise your hand using the react button. We have the next question from Mr. Priyank Parekh. Please go ahead. Yeah, thank you, Devyanshu, for the opportunity. Sir, just wanted to understand on per unit EBITDA for our all three segments. डाटा तो बताया सर आपको। So हाँ? you can say for Right. polymer drums per ton. आता हूँ सर, यूनिट वाइज तो नहीं बनाया हूँ, प्रोडक्ट वाइज बनाया हूँ। हाँ सर, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ प्रोडक्ट वाइज। सो पॉलीमर ड्रम में पर टन क्या है, एमएस ड्रम्स में पर टन क्या है, एंड आईबीसी में पर यूनिट क्या है? मैंने ईपी डाटा चाहिए ना आपको सर? हाँ ये आपको पर केजी क्या बचता है वो बताऊं? हाँ, पर टन पर केजी एनीथिंग। अभी ये जैसे मैंने बताया 94 का मेरा रॉ मटेरियल 120 रुपए में सेल करता हूँ, तो 26 रुपए किलो का हो गया फॉर पॉलीमर ना? पॉलीमर। ओके, एमएस ड्रम्स में? एमएसडम में 57 56 में लेता हूँ और 85 के हिसाब से बेचता हूँ। यही है ना सेलिंग प्राइस। 29 का। ओके, एंड आईबीसी में? आईबीसी कॉस्टिंग 6000 की और 8000 में बेचता हूँ, 2000 रुपए का। ओके, एंड सर ये हिस्टोरिकली इसमें इज दिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाउ इट इज, मतलब? देखिए इसमें ये कॉस्ट लो कॉस्ट ही है, ये जो हम दे रहे हैं मिनिमम प्राइसिंग ही है, इसमें ये इससे कम में कुछ होता नहीं है। लेकिन नए कोई कस्टमर आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर, तो थोड़ी फाइट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने कस्टमर को रेट के लिए जाने नहीं देते हैं। एक बार फिर उनको समझ में आ जाता है तो धीरे धीरे मार्केट सेट हो जाता है, धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो जाते हैं इस रेट में। अंडरस्टूड। सो मतलब आपका कहना ये है कि हिस्टोरिकली भी यही रेंज के आसपास रहता है? हाँ, इतने सालों से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, और इसमें मतलब ये एक जो लीवर है हमारे पास वो पावर कोस्ट का है, उसके अलावा? दो लीवर है सर, जैसे जैसे हमारी वॉल्यूम बढ़ रही है, हाँ हम पॉलीमर है 2500 टन माल परचेज करते हैं, और कोई नया आता है 500 टन लेगा, तो हम उससे 2 रुपए किलो मिनिमम सेविंग है उसमें। तो हम उससे ओके, परचेज में ही एक ड्रम के पीछे समझिए तो 20 रुपए हमको परचेज कॉस्ट ही बच जाता है। हाँ ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड वॉल्यूम सर। का फर्क तो आता ही है ना। स्टील भी आज हम 1500 टन ले रहे हैं, तो उसका भी फर्क आता है। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स इफ पॉसिबल आप पर सेगमेंट आपका क्या इबिटा बन रहा है,
if that can be given, so that would be very helpful. ठीक है, बनवा के देते हैं सर आपको। है ना? Because one of our competitor gives segment wise EBITDA. ठीक है, हम दे देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं आगे से। Okay, yeah. Thank you. That's it from my side. Thank you. Participants who wish to ask a मैम, question. मैं पूछ सकता हूँ प्रश्न? हेलो, Yeah, Mr. Saket, go ahead. या धन्यवाद सर। आपने कैपेक्स के लिए जो बताया कि ये वित्त वर्ष के लिए 90 करोड़ हमने आउटलाइन किया है, सो हाउ आई थिंक सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करीब 31 का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। सो हाउ मच सर हैव वी स्पेंट एंड वेयर वी हैव स्पेंट, एंड अभी H2 में कितना स्पेंट और करेंगे? 35 करोड़ का करीब करीब मेरे को दिख रहा था पेपर में सर, 35 के आसपास हो चुका है। 50 करोड़ जी। रुपया तो वो एक में ही जा रहा है मेरा। उसमें सोलर वाले को करीब करीब 25 से 30 करोड़ रुपया हमको अभी देना पड़ेगा। बाकी जो भी मशीनें आ रही हैं, इंस्टॉल हो रही है, उसमें लगेगा, तो पूरी मशीनरी वगैरह में ही लगने वाला है। 8-10 करोड़ रुपया समझिए कि बिल्डिंग में हो जाएगा, बाकी सब मशीनरी में ही जाएगा। सर एक बार ब्रेकअप फिर कहेंगे सर, आपकी लाइन कट रही थी। 25 से 30 करोड़ रुपया मेरे को सोलर वाले को देना पड़ेगा जी और मशीनरी में लगेगा 10 करोड़ के आसपास बिल्डिंग में जाएगा। जी, ये सब मिला के 90 करोड़ लगेगा इस साल में। बचेगा 35 करोड़ का एक्सपेंस हो चुका है, 55 करोड़ रुपए और होना है, और शायद होना उससे है। ज्यादा भी कर लेंगे। सर ये जो हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं, ये क्या कैपेसिटी क्या है और इसमें पेबैक क्या है हमारा सर? 13.5 मेगावाट का है और ये यदि 3 साल में पेबैक होता है, यदि आप इंटरेस्ट उस पर ना जोड़े तो 2.5 से 3 साल में पैसा रिटर्न आ जाता है। ओके, और अभी जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है पावर की, उसका कितना परसेंटेज ये कैपेबिलिटी हम इसको मीट कर लेंगे? 60% ही हम गवर्नमेंट का रूल है, 60% हम पूरा कैपेसिटी लिए। 60%। ओके। जय सर, आपने जैसे बताया कि वी आर लुकिंग फॉर न्यू कस्टमर्स इन द केमिकल इंडस्ट्री और we have onboarded them. So can you give some more color which segment and what kind of potential they offer going ahead? The customer base. So you in please our come closer to the industry- mic, sir. Yeah, majorly the customer base is chemical segment. So in this quarter only, we see a lot of traction coming up from chemical. Prices have improved for the chemical industry. Demand is coming for them from Europe and US. So that is why we have been onboarding customers. The new customers from Maharashtra and belt also we have onboarded. We have already started supplying from our Gujarat units. So as soon as our Maharashtra unit will commence, we will shift all our Maharashtra customers from VADA. That will again improve our margins. Plus, we will have a spare capacity in Gujarat, so that Gujarat industry will fulfill there. So this is the idea right now. So that once the VADA unit start, we will have a customer base from day one. We will not end up wasting no time. I hope I explain you. साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि 50 करोड़ का रन रेट आपने बना लिया है हर महीने का, तो ये H2 के लिए ये एक ब्रॉडर नंबर बन सकता है कि आपका सीजनैलिटी का फैक्टर भी आता है, H2 में बेटर ऑफटेक भी होता है? अगर कैसा सीजनली आप देखते हैं बिजनेस को? बिजनेस नहीं है सर हमारा। जो मैंने मार्क पकड़ा है, जो भी अचीव किया है फिगर, वो उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें प्लस ही हुआ है आज तक। सर मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर कहिए। जो भी फिगर मैंने जो टच किया है कभी सेल का, हाँ, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ प्लस हुआ है सर, उसमें माइनस नहीं हुआ है मेरा आज तक जो हुआ है। ऐसे तो बाकी तो क्या है, आप फ्यूचर बोल सकते हैं, लेकिन हुआ यही है कि कुछ ना कुछ उसके बाद और ऐड हुई है, उसके अंदर माइनस नहीं है। सीजन बिजनेस नहीं है हमारा सर, ये सीजनल बिजनेस नहीं है कभी भी इसमें। ओके, तो जैसे आप जो 575 का जो आंकलन कर रहे हैं पूरे बरस के लिए, उस हिसाब से 50-60 करोड़ की रन रेट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी हम वो फिगर तक पहुंचे। 50 करोड़ के आसपास ही सोच रहे, तो भी वहां पहुंच रहे हैं सर। जी, ठीक बात है सर। एक सजेशन और था, अगर मैंने सबमिशन है कि जब आप ओपनिंग रिमार्क जो जय साहब दे रहे थे, उसको भी अगर आप प्रॉपरली इनक्रिप्ट करके प्रेजेंटेशन के संग दें,
तो वो काफी हम लोगों को बेस मिल जाता है। और सर हम लोग जो जूम का मोड, हाँ सर, जो जूम मोड पे भी कंडक्ट कर, हम अगली बार से कर देंगे सर, उसको ओपनिंग रिमार्क्स में उसमें दिलवा देंगे। जी सर। और सर जो हम लोग जूम मोड में बात करें तो इसमें भी कई बार हमारे सिग्नल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, और आप जो वक्तव्य दे रहे हैं वो ठीक से हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम लोग सीधा डायल मोड पे आ जाएं, क्योंकि हमारा कोई प्रेजेंटेशन एंड ऑल का ऐसा कोई खास बात नहीं रहती है, तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सुविधाजनक होगा सर। करवा लेंगे सर तो अगली बार से वो, अगली बार तो सर वो भी, करवा जी सर। लेंगे। और सर जो प्लांट विजिट का रहेगा उसके लिए जैसा मैडम जैसा रहेगा, हम लोग को भी अगर उसका अपडेट मिलेगा तो पार्टिसिपेट कर सकेंगे सर, और बेटर समझने के लिए। सर सर अगर हम लोग ये तो 2 बरस का सर आपने गोल सेट किया, आगे सर किस प्रकार से आप कंपनी को मैंने अगर 5 साल 7 साल का हम रोड मैप देखें तो हम बताता हूँ सर। ये अभी मेरे ये यूनिट महाराष्ट्र में और गुजरात में जो चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, उसके बाद 2-4 लोकेशन और हमारे दिमाग में है। जब महाराष्ट्र का जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम नए लोकेशन में जाएंगे। डेवलपमेंट तो हर समय कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहेगा, कैपेक्स भी होगा और प्लांट भी डलेंगे सर आगे भी। आज तक वही पीछे से करते आ रहा हूँ, एक साथ 4 जगह नहीं जा रहा हूँ। पहले यहाँ का हो जाए उसके बाद आगे की सोचूंगा। बहुत से लोकेशन है अभी भी हमारे लिए जो हम जा सकते हैं। और तीसरी 3 लाइन ये है, तो चौथी लाइन भी उसके बाद मिली, रिसाइकलिंग की भी है। रिसाइकलिंग का प्लांट भी सेट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे जिस बिजनेस में जो स्कोप दिखेगा उसमें आगे बढ़ेंगे। This is the new segment we are getting into it, so adding a new vertical in our business, and this recycling business is endless. It can be, so right now we are just getting into SDP. We can go in a numbers of PP, polyethylene. There are many kind of SDP and various kind of grades available which can be explored. So we are on track with development, with future expansion वगैरह सब होता है। expansion also, product development also, and adding new verticals. So we have been exploring all the opportunities, and soon you will get. So we are not looking for a small quarter to quarter. We are setting up our long term and many decades to go. This is the idea behind what we are doing right now. एंड सर लास्ट पॉइंट इज ऑन द कैपेक्स में जो आपने यूनिट 6, 7, 8 और 9 का जो विस्तृत बताया है, अगर सर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से क्या रेवेन्यू क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आपने मेटल ड्रम, मैंने आप अगर आपका प्रेजेंटेशन में जाएं पेज नंबर 6 पे, आपने हर यूनिट के विषय में कैपेक्स का बताया कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो आप अगर इसे सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं। स्पेशली यूनिट 6, 7 के विषय में आपने लिखा है सिविल वर्क फॉर एडिंग 1 लाइन ईच ऑफ 200 लीटर्स। तो एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हमारा 2.5 एकड़ का प्लॉट था, वो बन गया था और उसमें मशीन लग गई, चल रही है। उसके बगल में ही 2.5 लीटर लेन बोर था, उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन करा लिया है। उसके अंदर कैपेसिटी है 200 लीटर की, हम 5-6 मशीन और 150 लीटर की 6 मशीन ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम 20% हम मशीन लगाए हैं। अभी जो 20% से जो रेवेन्यू है वो हम आपको दिखाए, उसके अंदर 5 टाइम्स और ऐड हो सकती है वो कैपेसिटी। टोटल एक रेवेन्यू का एक फिगर नहीं है मेरे पास। आपको जो रेवेन्यू 7-8 का दिख रहा है उसको हम 5 गुना वहां और बढ़ा सकते हैं उस जगह पर। प्लस वाडा का जो है, मैंने महाराष्ट्र का वो फिगर पूरा दिया हुआ ही है कि कितना है वो। अभी हम 40% कैपेसिटी पर, तो मेरे तो जो 30% लगाए हैं प्रोडक्ट, उसको हम 3 टाइम्स और ऐड कर सकते हैं, इतनी वो जगह है। तो वहां से बिजनेस हमारा वाडा से 500 करोड़ तक जाएंगे वहां पर जो जगह है। अभी हम उसमें 100 करोड़ का आपको बिजनेस दिखा रहे हैं, तो 5 टाइम्स वहां भी ऐड होगा बिजनेस। मेटल रन का उसमें समझ में आ ही रहा है, वो जो अभी हम बना रहे हैं उसको हम 3 गुना 3 टाइम्स माने 2 डबल टाइम और भी जा सकते हैं वहां से सेल में। जी सर, ठीक ये ठीक सब है जो सर। कैपेसिटी है ये 1000-1100 करोड़ रुपए में सेल में हम इतनी कैपेसिटी से जा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे और मशीन बढ़ाएंगे या कोई लोकेशन में जाएंगे वैसे वैसे और सेल बढ़ेगी मेरी। यही है प्लान। सर अगर हम लोग मार्केट शेयर देखें अपने सब तीनों ही प्रोडक्ट में, तो वो अभी कितना ऑर्गेनाइज प्ले है, कितना अनऑर्गेनाइज्ड है, और अगर सर इस पे थोड़ा विस्तृत कुछ बताते। ऑर्गेनाइज तो है ही है सर, ड्रम वगैरह सब बना ही रहे हैं, बहुत से लोग बना रहे हैं। लेकिन मेटल ड्रम में हम लिए हैं तो भी हम, मेरे को लगता है 10% मार्केट शेयर ले लिया। एचडीपी ड्रम में भी अभी एग्जैक्ट तो फिगर नहीं है, जब तक हम समझते हैं कि 20% या 15 से 20% मार्केट शेयर मेरा जरूर होगा।
आईबीसी में भी 30-35% के आसपास हम होंगे जरूर। अब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन हम जो समझ रहे हैं हम बता रहे हैं ना। ओके सर, ये माइल्ड स्टील ड्रम जो है एमएस ड्रम, ये सेम चीज ही हुई ना सर? सेम माइल्ड स्टील, ओके एमएस को माइल्ड स्टील बोलते हैं। ओके सर, इसमें बामन लॉरी से भी हम compete करते हैं इस सेगमेंट में? डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। डायरेक्ट कंपटीशन है सर, तो उनकी कैपेसिटी के अनुसार हम लोग मैंने क्या मार्केट शेयर उनका होगा और हम कहाँ पर हैं सर वॉल्यूम टर्म्स में? उनका सर बहुत जगह प्लांट है, They have जो got- साउथ में भी है, उधर भी है, उतना एक्यूरेट बताना वो सही नहीं आएगा। They must be around 4,000-5,000 tons of MS. मैंने बहुत बड़ी कैपेसिटी है, वो बहुत पुराने भी है, आज 30 साल से इस बिजनेस में। They are the pioneers of this industry. We are catching up. We have our own share of market share. They have their own market share. We both are. We have a healthy relationship. It's a direct competition and also a healthy relationship. ठीक है Whatever सर। the market, we are getting the share of the market. This is what the idea is. आई ज्वाइन द क्यू सर, बहुत धन्यवाद सर सभी जानकारी के लिए। Thank you. Participants who wish to ask a question, may you please raise your hand using the reaction button. We have a follow-up question from Mr. Dipesh. Please go ahead. Yes, sir. Firstly, thank you for joining us. I mean, आपको रूबरू देख सकते हैं जूम पे, तो वो एक थैंक यू उसके लिए। अच्छा सर, ये पूरे क्वार्टर में was there any risk of inventory loss because नहीं generally सर, prices काफी नीचे आए हैं? इन्वेंट्री लॉस नहीं है, इन्वेंट्री लॉस। कोई इन्वेंट्री लॉस सर? कस्टमर इसलिए देखिए बार बार बोल रहे हैं, ये जो मैंने नए कस्टमर, जैसे लोग दूर के कस्टमर थे, जब महाराष्ट्र में हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, जहाँ ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो रहा था, तो मैंने उन सब कस्टमर को अभी पकड़ा है। महाराष्ट्र में वाडा में हमारा प्लांट आने वाला है, तो उस कस्टमर को अभी से हम डेवलप कर रहे हैं। एमएस ड्रम आने वाला है, तो उसको डेवलप कर रहे हैं। इसके कारण वो प्राइसिंग का प्रेशर रहा है, वो जैसे ही हम महाराष्ट्र में चालू हो जाएंगे वो सब खत्म हो जाएगा। तो Okay. उससे लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ गया, कोई मार्जिन कम हो गई, रेगुलर कस्टमर कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, जनरल अपना बिजनेस कैसे होता है सर? बिकॉज अभी जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस होते हैं वो काफी तो सीधा फ्लक्चुएटिंग सीधा होते हैं। फर्क पड़ा है, देखिए 94 में खरीद रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, 25-26 रुपए का कन्वर्सन मिलता नहीं है। नहीं, वो तो कन्वर्जन, वो हाँ। जनरल कन्वर्जन प्राइस वही है 20-25 रुपीज, सॉरी 25 प्लस रुपीज। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो वी आर ऑलरेडी बुकिंग द प्राइस विद द कस्टमर के? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो हलवाई की दुकान में मिठाई बनती है, तो मिठाई तो बिके या नहीं बिके, वो बना के रोज खोल के बेचता ही है। अब आपसे उससे पूछिएगा कि आपका बिक तो होता है, वो तो होता ही होगा ना, कभी पूरा भी बिक जाता है, वो नहीं बिल्कुल होता ना। सर। इतना इंश्योरेंस कहीं नहीं है बिजनेस में। अच्छा अच्छा, ओके ग्रेट। और सर जनरल अपना कन्वर्जन चार्जेस उतने ही होंगे 25 के, उसके आगे भी बढ़ेंगे? तो मार्जिन उतनी है। कुछ मेरे कस्टमर नए प्लेयर आए, तो मेरे कस्टमर को लेना चाहा, तो मैं उसको होल्ड किया, प्राइस उसमें देना पड़ा। बाकी लोग दूर के कस्टमर को मैंने पकड़ के, भाई कि ठीक है ट्रांसपोर्ट अभी लग रहा है, इनकम नहीं हो रही है, लेकिन आगे जब हम उनके नजदीक जाएंगे तो उसमें हमको प्रॉफिट आएगा। राइट। तो मतलब अपना अभी महाराष्ट्र में प्लांट है और एक भरूच में प्लांट है, तो वी आर एबल। महाराष्ट्र में अभी आने वाले हैं सर, महाराष्ट्र में प्लांट नहीं है, महाराष्ट्र में अभी तक प्लांट नहीं है हमारा, गुजरात में और सिलवासा में ही है प्लांट। सिलवासा में, महाराष्ट्र, राइट। Maharashtra is हाँ। coming up, sir. Okay, so we will be able to cover the entire of Maharashtra and Gujarat, right? Or are we जी। able to even go to Rajasthan? नहीं सर, अभी हम जाता है तो माल पूरे हिंदुस्तान में है हमारा, हाँ। लेकिन हम जो मेन कवर करते हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र को ही करते हैं। बाकी कस्टमर पूरे हैदराबाद में यहाँ से माल जाता है अपना, और Okay. बहुत अच्छे नहीं, माने सब जगह जाता है माल, लेकिन मेनली मार्केट कैप्चर जो कहेंगे वो इधर है। एक दो कस्टमर सब जगह हिंदुस्तान में है जो अपने से लेके जाते हैं, कलकत्ता भी लेके जाते हैं, तो वो मेन कस्टमर नहीं हो गए। एक्सपोर्ट भी जाता है अपना, ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट भी नहीं जाता, एक्सपोर्ट भी जा रहा है, अच्छा खासा ही जाता है। अभी 2-3% का एक्सपोर्ट भी हो गया है। Because अपना freight cost also is a very high proportion, right? हाँ, इसीलिए वो उतना बड़ा मार्केट बाहर से नहीं, आप जहाँ नजदीक जाएंगे तो ही आपको मार्केट मिलेगा, फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। Okay, so तो अगले कुछ सालों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप राजस्थान में और अदर स्टेट्स में जल्दी आएंगे? स्टेट का नाम ले लेंगे हम, ऐसे हाँ जरूर जाएंगे, लेकिन ऐसी जगह जाएंगे बड़ा मार्केट हो, जहाँ आपको अच्छी खासी सेल मिलती हो, जहाँ ऐसा है। साउथ भी है, नॉर्थ में भी है, सब जगह। मेनली जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है और केमिकल इंडस्ट्रीज है वहीं पे होगा, राइट? There should be concentration of cluster of
manufacturers. Right. And this after this PCR, especially that post-consumer recycle, that rule which has come, तो महाराष्ट्र as well as गुजरात दोनों जगह पे अपने रिसाइकल प्लांट्स है या एक ही जगह पे? रिसाइकिल प्लांट खाली गुजरात में, लेकिन रिसाइकिल प्लांट मेरे सेंट्रल के कानून है वो ईपीआर का, तो हम गुजरात में से भी महाराष्ट्र के प्लांट को भी दे सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान को दे सकते हैं, तो मेरा एक प्लांट से सब जगह कवर हो जाएगा ईपीआर रेगुलेशन। ओके ओके, और उसकी क्या कैपेसिटी होगी ईपीआर की? कैपेसिटी तो हम अभी स्मॉल लगाए हैं, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं, बड़ी जगह है, जैसे जैसे अच्छा। वैसे वैसे हम इसको यूज बढ़ाएंगे। स्टार्ट तो हम एक मशीन से कर रहे हैं और उसका लगभग 500 किलो पर आवर है, 500 kg per hour. मशीन जो है। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी जगह का प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में? No, that place is already acquired. There is a standalone new plot we have purchased. Construction work has already started, and it is scheduled to commence from May, June 2025. Great. All the very best, sir. And we are long-term investors, so definitely we'll stick with you to all Thank you, things. sir. Thank you. And we are Thank hoping you. that we'll get that 900 to 1,000 crores and you'll surpass it, I'm sure. Yes, yes. होप ऐसा Thank हो भी you. Thank जाएगा। you. All the very best. Thank you. Goals. Thank you, Dipesh. Any participants who wish to ask a question may please raise your hand using the reaction button. I think we have a follow-up question from Mr. Saket. Sir, you can go ahead. नहीं मैम, मैं मेरे सभी प्रश्न जो मेरी समझ से थे मैंने पूछ लिए हैं। अगर कुछ पेंडिंग रहेगा तो फिर मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। आई हैव हर्ड। सिर्फ सर हम लोग यही देख रहे हैं कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी कर्व है हमारा, इसमें इम्प्रूवमेंट और प्रेडिक्टेबिलिटी कैसे आप ला सकते हैं? दैट मीन्स कि हम इस बिजनेस में 8% 9% की मार्जिन की सस्टेनेबिलिटी कितने हद तक देख रहे हैं कि हाँ ये हम जब ये बिजनेस करेंगे तो हमारी ये मजबूती बनी रहेगी? इस पर सर आपका क्या ध्येय है सर? तो मैं मिनिमम देख रहा हूँ, मैं तो उसको इम्प्रूव करके 10-11% कैसे करूंगा, उसके लिए मैंने ये सोलर और ये जो कैपेसिटी ऐड कर रहा हूँ। जी, तो ये 10-11% की जर्नी सर हम कब इसको ऑन पेपर देखना शुरू करेंगे नंबर्स में? नंबर में आप जून में आराम से, जून जो क्वार्टर आएगा हमारा 26 का 25 का, तब तक सोलर भी लग जाएंगे, सब सोलर इम्प्लीमेंट होते ही वो दिखने लगेगा। Q1 onwards. दिखेगा। ओके, Q1 ऑनवर्ड्स हमको ये इंक्रीमेंटल मार्जिन में मिलेगा और वॉल्यूम का भी सर एडवांटेज मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर से जो आईबीसी में है। ऑपरेशन चालू हो जाएगा सर। अभी तक तो मैंने खाली फसल डाली है, फसल काटना अभी बचा हुआ है, सब फसल कटेगी उस समय से। Hopefully by that time we will give you more good news that we are coming up with new location. Keep fingers crossed. ओके, बट सर H2 में सर हमको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन हम H2 में भी देख रहे हैं ना, अभी ये क्वार्टर में भी तो आपने बताया ही अभी कि Polymer drums volume growth, आईबीसी पॉलीमर एमएस तीनों में ही वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा सर नेक्स्ट क्वार्टर। ओके, तो सर ये मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि ये क्वार्टर एक बॉटम क्वार्टर ही था हमारे अर्निंग के हिसाब से, जो ये जो वित्त वर्ष है इसमें Q2 हमारी अर्निंग का एक बॉटम था। अब यहाँ से जो भी चीजें होंगी वो अपवर्ड ही ट्रैजेक्टरी बननी चाहिए, होपफुली यही होना चाहिए। ठीक है साहब, धन्यवाद सर और विस्तृत रूप से सर जानकारी देने के लिए, और इसे कंटिन्यू रखें सर। ओके, थैंक यू सर। सर हमारे पास और कोई क्वेश्चंस नहीं है। I would just like to hand over the call to the management in case you have any closing remarks. Yeah, all friends, thanks for joining and thanks for keeping faith on us. We have been doing all our best. What we are doing, we have been running this store 24/7, and we are setting up our goal for the long-term goal, wherein we are doing all our investment in backward integration as well as forward integration. We are adding capacity also. We are looking at a sustainable also, wherein we are touching all the big companies who wants all kind of this sustainable in future, that sustainable environment. So we have been doing all that
necessary things which our competition might not be doing. So this is what I can say, and hopefully from next quarter onwards, you will see good results coming up, and as expected on lines. Thanks for joining. Thank you so much. नमस्कार. Thank you everyone for